أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، جس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور اس لیے لے گیا تاکہ اس کو دکھائے ہماری نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ محترم حضرات، صبح ہوئی شام ہوئی، یوں ہی عمر تمام ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال گزر گیا، پتہ ہی نہیں لگا۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، اور ہفتے دن کی طرح، اور دن گھنٹوں کی طرح گزر جائے گا۔ دن بدن ایسے حالات بنتے جا رہے ہیں کہ دن کیسے گزر جاتا ہے، وقت کیسے گزر جاتا ہے، پتہ نہیں لگتا۔ اور یہ سال تو ایسے گزر گیا جیسے کچھ معلوم ہی نہیں ہوا۔ کبھی کوئی بات کرتا ہے کہ معلوم ہے گزشتہ رمضان میں ہم نے یہ آپ سے بات کہی تھی یا آپ سے ملاقات ہوئی تھی، تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی چند دنوں پہلے، چند مہینوں پہلے ملاقات ہوئی تھی اور بات ہوئی تھی۔ تو حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں دنیا کے کہ وقت کیسے نکل جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا۔ اور خاص کر کے ہمارا موجودہ واقعہ اور موجودہ حالت فلسطین کے ہمارے سامنے ہے۔ اسی فلسطین کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ چنا ہے، کیونکہ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں اور دروس ہیں۔ اس میں ہمارے لیے اسباق ہے، نشیب و فراز ہے، اتار چڑھاؤ ہے، کبھی خوشی کبھی غم ہے۔ خوشی ہے تو کیسے زندگی گزارنا ہے، غم ہے تو کیسے ہمیں حالات سے نمٹنا ہے اور حالات سے ہمیں کیسے لڑنا ہے۔ یہ سارے واقعات ہمارے ان دونوں واقعات میں، ان دونوں انبیاء علیہ السلام کی سوانے میں ہمارے لیے موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا جالوت سے جنگ کرنا، ان کی حکومت کرنا، لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا اور ان کی حکومت کا چلانا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدا داد حکومت، اس کا تذکرہ، پھر ہاروت و ماروت کا تذکرہ، جو جادوگر تھے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے تھے اور بنی اسرائیل کے امتحان کے لیے بھیجے گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت پر اڑتا جانا، اسی طرح ہدہد کا واقعہ، ان کے ساتھ جناتوں کا واقعہ، بیت المقدس کا بنانا، تعمیر کرانا، اور سبا، قوم سبا اور ملک سبا کی بادشاہ
بلقیس کا واقعہ، یہ سارے واقعات آپ کے سامنے عرض کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام جس جگہ رہتے تھے وہ فلسطین کا علاقہ تھا۔ فلسطین کا تھوڑا سا ذکر آپ کے سامنے میں عرض کر دوں۔ فلسطین ملک شام، ملک اردن، لبنان، مصر، اس کے اطراف میں یہ ایک ملک ہے۔ ایک ہے بیت المقدس، ایک ہے مسجد اقصی، ایک ہے قبۃ الصخرہ۔ فلسطین میں ایک شہر ہے بیت المقدس، اور اسی کو یروشلم کہتے ہیں، تل ابیب یہ لوگ کہتے ہیں، اس کے پاس جو واقع ہے۔ اور اس بیت المقدس شہر میں بنی ہوئی ہے مسجد اقصی، جس سے ہم تمام مسلمانوں کی آستھائیں جڑی ہوئی ہے۔ اور اسی بیت المقدس کے صحن میں، اسی مسجد اقصی کے صحن میں قبۃ الصخرہ ہے۔ ہم فوٹو میں اکثر دیکھتے ہوں گے کہ ایک بلیو کلر کا ایک عمارت بنی ہوئی ہے، اور اس بلیو کلر کی عمارت کے اوپر سونیری گنبد ہے، اس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے گودرا کے اندر جامع مسجد کے باہر یہ صحن، اسی طرح بیت المقدس ایک شہر ہے، اس شہر کے اندر مسجد اقصی ہے، اور مسجد اقصی کے صحن میں قبۃ الصخرہ ہے۔ یہ قبۃ الصخرہ وہ جگہ ہے جہاں سے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے لیے سفر شروع کیا تھا۔ بیت المقدس بیت اللہ شریف سے آئے، بیت المقدس قبۃ الصخرہ، اور وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ بیت المقدس اس کو آباد کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ اس سے پہلے ان کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام تشریف لائے تھے بابل یعنی عراق سے۔ نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر طرح سے ستایا، تکلیفیں پہنچائی، آگ میں ڈالا، بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ بابل کے زمانے میں عراق کو بابل کہتے تھے۔ وہیں سے آپ علیہ السلام نکلے اور تشریف لے گئے فلسطین کے علاقے میں تشریف لے گئے، اور وہیں آباد ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج ان کی قبر وہاں موجود ہے، اور وہیں کے نام سے ایک گاؤں آباد ہے الخلیل، اور وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام مدفون ہے، آپ کی قبر مبارک ہے۔ اس کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے اور حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ گویا حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جائے پیدائش کی جگہ بھی فلسطین ہے، اور یہ بیت المقدس کے اطراف کے علاقے ہیں۔ تو یہ بیت المقدس اور فلسطین کی میں آپ کو اہمیت بتا رہا ہوں، یہ کتنی اہم جگہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ہجرت کی جگہ ہے، اور حضرت اسماعیل بھی وہاں پیدا ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل بیت اللہ شریف چلے گئے، مکہ شریف چلے گئے، وہاں بیت اللہ شریف بنایا، کعبۃ اللہ کا بنایا۔ یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب کو حکم ہوا کہ آپ مسجد بنائے، حضرت یعقوب نے مسجد اقصی کو بنایا۔ پھر مرور زمانہ گزرتا گیا، مسجد اقصی کچی تھی، ختم ہو گئی۔ حضرت داؤد کا زمانہ آیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے وہاں ایک خیمہ لگایا۔ وہ خیمہ کون سا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر کے نکلے مصر سے، اور فرعون نے پیچھا کیا اور دریائے نیل کو پار کیا، حضرت موسیٰ کو اپنا قافلہ لے کر اور اپنا لشکر لے کر اور بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے۔ پیچھے فرعون آیا، وہ دریائے نیل میں داخل ہوا، اور
गर्क हो गया। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे शाम के इलाके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि सामने मुबारक बस्ती है, बारक ना हौला, जिसके इर्द गिर्द बरकतें। 4 जगह कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है ये बैतुल मुकद्दस, ये मस्जिद अक्सा वो जगह है जिसके इर्द गिर्द बरकतें हैं। जरा सोचे कि जिस जगह को खुद अल्लाह कह दे कि ये बरकतों वाला है, और अभी मैंने आयत शरीफा पढ़ी बारक ना हौला, कि उसके इर्द गिर्द बरकतें हैं। बाज़ उलमाए किराम ने लिखा है कि वहां 300 से ज्यादा अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्र है। इससे भी अहमियत मालूम होती है कि ये जगह कितनी आम है, जिससे हमें पता लगता है कि यहूदी इस इलाके के पीछे क्यों पड़े हुए हैं और मुसलमान जो वहां रहते हैं उनको आए दिन क्यों कत्ल करते हैं, और आज भी कत्ल आम जारी है और आज भी उनको तकलीफें पहुंचा रहे हैं। अलगर्ज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया सामने बस्ती है, फतेह कर लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अल्लाह ने कहा। बनी इस्राइल को कहा गया कि सामने जो बस्ती है फलस्तीन शाम, उसको फतेह करना है, आप चले और जंग कीजिए। तो इन लोगों ने कहा कि आप जाइए, मूसा को कहा आप जाइए और आप जंग कीजिए, हम तो नहीं आएंगे। क्यों? इसलिए इनको पता लग गया था कि वो कौम जब्बारून जो सामने है वो बड़ी मजबूत है, ताकतवर है, उनका बादशाह तो बहुत ही खतरनाक है। तो ये सारी चीजें देखकर बनी इस्राइल ने अपने नबी हजरत मूसा से कहा कि आप जाइए और आप जंग कीजिए। लेकिन आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे कि कहां जा रहा है, सहाबा मौजूद है और इनको कहा जा रहा है कि हमें जंग करना है, सामने मौजूद है, कुफारों से जंग करना है। तो मुहाजिर साहबा मक्का के साहबा खड़े होकर कह रहे थे अल्लाह के नबी जरूर हम जंग करेंगे, जरूर जंग करेंगे। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कोई ऐलान करे, और कोई ऐलान करे, और कोई अपनी बात पेश करे। तो मिकदाद इब्न असवद समझ गए कि ये इशारा हमारे अंसारों की तरफ है, ये इशारा हमारे अंसारों की तरफ है, मदीना के साहबा की तरफ है। वो खड़े हो गए और कहने लगे या रसूल अल्लाह हम आपका इशारा समझते हैं, हमने तो पहले से ही आपको कह दिया है कि हमारे जान और माल और सब कुछ आप पर कुर्बान है। आप अगर कहेंगे सामने आग है कूद जाइए, हम आग में कूद जाएंगे। आप कहेंगे सामने दरिया है पानी है कूद जाए, हम दरिया में कूद जाएंगे। हम वो जिगर रखते हैं, हम आपके लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, खाली इशारा तो कीजिए। ये थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, और वो थे बनी इस्राइल जो आज जंग कर रहे हैं, उन्हीं की औलाद है। ये अक्सर अंबिया अलैहिस्सलाम को सताया करते थे, मौका मिला तो कत्ल करते थे, परेशान करते थे, और हमेशा अपने अंबिया अलैहिस्सलाम को शक व शुबा की नजरों से देखा करते थे और परेशान करने में आगे थे। अलगर्ज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब कहा गया जंग कीजिए, बनी इस्राइल बैठ गए, जाने के लिए तैयार नहीं। अब क्या हुआ, अल्लाह ताला ने इनको सजा दी 40 साल तक। वो चलते थे सामने और फिर घूम घाम कर फिर वही के वही आ जाते, उनको रास्ता ही नहीं मिलता था। और जो खैमा था, एक खैमा था, उस खैमा को जहां वो पड़ाव डालते थे वो खैमा तैयार कर देते थे और उसमें वो इबादत किया करते थे। ये वही खैमा था जो चलते चलते हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आया और बैतुल और मस्जिद अक्सा की जो जगह थी वहां उस खैमे को कायम किया और वहां नमाजें शुरू कर दी। हजरत दाऊद ने इबादत शुरू की। हजरत दाऊद के बाद हुकूमत आई सुलेमान अलैहिस्सलाम की। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा को पत्थरों से बनाया और जीनों के पास बनाया। जीन लाते थे दूर दराज से, बड़े बड़े पत्थर लाते थे, बड़े बड़े पत्थर जो बड़े बड़े हाथी उठाते थे, ऐसे पत्थर लाते थे और बड़ी मस्जिद बनाई, बहुत बड़ी मस्जिद बनाई। और यहां मस्जिद कायम करने के बाद बैतुल मुकद्दस अतराफ का इलाका आबाद हो गया, अतराफ का इलाका आबाद हो गया। इसके बाद 500 साल के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जब बनी इस्राइल के हालात बिगड़ गए, वो अय्याशी और औबाशी पर चढ़ गए, गुनाहों में मुब्तला हो गए, नाफरमानियों में मुब्तला हो गए, अल्लाह की नाफरमानी करने लगे, तो
बुख्त नसर को अल्लाह ताला ने उन पर मुसल्लत किया। यह बुख्त नसर ये ईरान के अतराफ का एक बादशाह था और बहुत ही सख्त तरीन बादशाह था, बहुत ही सख्त तरीन। इसने फलस्तीन पर हमला किया और बैतुल मुक़द्दस को नाराज कर दिया, खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया और ईंट से ईंट बजा दी। और वहां के जो यहूदी थे कईयों को कत्लेआम शुरू कर दिया। कहते हैं कि इतना कत्लेआम किया, इतना कत्लेआम किया कि उनका जो खून बैतुल मुक़द्दस में था, उनका खून मस्जिद अक्सा में जो था वो पिंडलियों तक आता था। ऐसे हालात गुजरे और कईयों को कत्ल करने के बाद 1 लाख को वो कैद करके अपने मुल्क ले गया। फिर उसके बाद तकरीबन 70-80 साल के बाद सारे से आजम जुल्करनैन कहते हैं, जुल्करनैन ने फलस्तीन को फतेह किया तो बुख्त नसर जिन लोगों को ले गया था, यहूदियों को, उन तमाम यहूदियों को इन्होंने छोड़ दिया, जाओ तुम जा सकते हो अपने मुल्क। चुनांचे वहां कर फिर इन्होंने आबाद करना शुरू किया बैतुल मुक़द्दस को और आबाद किया मस्जिद अक्सा को। इस तरह फिर चंद दिनों ये इन पर हमेशा कौमें हमला करती रही और इनको मारती रही, काटती रही। रोमियों ने 2 मरतबा इन पर हमला किया, 2 मरतबा, कभी भी वो कहीं जम नहीं सके। आखिर में यहां कर 100 साल से जमे हुए, तकरीबन 100 साल हो गए और जमे हुए। और तकरीबन हो सकता है कि ये ताबूत की आखिरी, ये जंग जो है चल रही है, वो ताबूत की आखिरी कील हो, ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, ऐसा महसूस हो रहा है। अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद है उन मुजाहिदीन के साथ, उन लड़ने वालों के साथ। जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने, हमारे हिंदू भाइयों ने इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए आजादी की जंग लड़ी थी और यहां से अंग्रेजों को भगाया था, इसी तरह वो लोग अपने मुल्क को आजाद करने के लिए यहूदियों से लड़ रहे हैं और अल्लाह ताला जरूर इनको फतह देगा। अलगर्ज रोमियों ने इनको बर्बाद किया। आगे चलते 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 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना आया। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए 571 में पैदा हुए और आपको नबूवत मिली 611 में। 611 में नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साल और गुजरे। 10 साल गुजरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 622 के करीब, 622 या 22-21 के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में, मस्जिद अक्सा में तशरीफ लाए और वहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर हुआ, वहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर हुआ। और एक वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी मुसलमान भाइयों का, हमारे मुसलमान भाइयों का इस तरह जुड़ा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से मेराज का सफर किया। इसके अलावा 640 में हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला के जमाने में हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने बैतुल मुक़द्दस का घेराव कर लिया, पूरे शहर का। मस्जिद अक्सा का जो शहर है बैतुल मुक़द्दस, उसका तमाम जगहों से घेराव कर लिया। घेराव करने के बाद अब देखा उस जमाने में ईसाई थे, ये रोमी लोग थे, वो काफिर थे, फिर वो ईसाई हो गए। इन रोमी लोगों ने कब्जा किया था बैतुल मुक़द्दस वगैरह पर और वहां उनकी कलीसियाएं वगैरह बहुत कुछ इन्होंने बना दिया। ये बनाने के बाद वो उन लोगों के कब्जे में था, यहूदियों के कब्जे में नहीं था। बुख्त नसर के जमाने के बाद से लेकर यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के तकरीबन 100 साल के बाद से लेकर ईसाइयों का वहां कब्जा हुआ। 100-200 साल के बाद ईसाइयों का कब्जा हुआ और वहां से लेकर अबू उबैदा बिन जर्राह ने जब 640 ईस्वी में बैतुल मुक़द्दस का घेराव किया, उस पूरे शहर का घेराव किया, तो ईसाइयों का कब्जा था मस्जिद अक्सा पर। वो सारे तौब पादरी किताबों में पढ़े हुए थे। इन्होंने अबू उबैदा बिन जर्राह से बात रखी कि हम जंग करना नहीं चाहते, सिर्फ आप अपने अमीर को बुला लो, आपका अमीर यहां आएगा, हम उनको देख लेंगे, चाबियां उनके हवाले कर देंगे। चुनांचे हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला को पैगाम भेजा गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला मदीना से निकले। एक उनका सवारी 2 थे, बारी बारी सवार हो रहे थे। एक उनका गुलाम था, खुद थे, बारी बारी सवार हो रहे थे। जब बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचे और बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए
तो देखा कि एक आदमी सवार है ऊंट पर और दूसरा आदमी नकील खींचे हुए चल रहा है। तो यहूदियों ने अपनी किताबें खोल, ये ईसाइयों ने, ईसाई पादरियों ने अपनी किताबें खोल ली, तौरात वगैरह, जिसमें ये पेशीन गोई आती कि बैतुल मुकद्दस को कौन फतेह करेगा। इन्होंने खोली, पूछने लगे कि ये जो ऊंट पर सवार है वो कौन है। तो इनको बताया गया ये हजरत उमर हमारे अमीरुल मोमिनीन का गुलाम है। अच्छा ठीक है, हमारी किताबों में यही लिखा हुआ है, अगर खुदा ना खास्ता अगर उमर यहां बैठे होते, ऊंट पर बैठे हुए थे, कभी भी हम बैतुल मुकद्दस आपके हवाले ना करते, इसकी चाबी आपके हवाले ना होती, फिर तो आपसे जंग करते। लेकिन हमारी किताब में लिखा हुआ है जो वो फतेह करने वाला होगा मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस को, वो मुसलमानों का अमीर होगा, वो नकील लेकर आगे चल रहा होगा और उसका गुलाम ऊंट पर सवार होगा। यही बात साबित हुई। एक बात तो हमारी किताब में जो लिखी हुई बिल्कुल सही। अब हजरत उमर का हुलिया देखा, हुलिया भी उसमें लिखा हुआ था कि हजरत उमर लंबे तरंगे होंगे, उनका चेहरा बड़ा मोटा होगा, उनके पट्टे बड़े होंगे और बड़े दिलडोल के होंगे। ये सारी चीजें इन्होंने देखी, हजरत उमर का हुलिया देखा। उसके बाद इन्होंने उनके कपड़े पर पैबंद, ठिकरा जिसको हम कहते हैं, पैबंद देखना शुरू किए, गिनना शुरू किए, 1 2 3 4 5, तो आपके 15 पैबंद हैं। और हमारी किताब में लिखा हुआ है कि आपके कुर्ते पर और आपके लिबास के ऊपर 17 पैबंद होंगे, 2 पैबंद नहीं है। हमें शुबा पैदा हो रहा है, शक पैदा हो रहा है हमें। तो हजरत उमर ने कहा कि 2 पैबंद और बताता हूं मैं आपको, एक पैबंद ये मेरे बगल में है और दूसरा पैबंद ये दूसरी बगल में, गिन लो 17 हो गए कि नहीं? कहा 17 हो गए। इन्होंने कहा कि ये चाबियां तुम्हारे पास है और ऐलान किया। ईसाइयों ने अपने लश्करियों को और अपने लोगों को, अपनी पब्लिक को कहा कि अल्लाह की कसम इसको न छेड़ना, इसकी किस्मत में बैतुल मुकद्दस की फतेह लिखी हुई है और आसमानी किताबों में हमारी तौरात वगैरह में लिखी हुई है। अगर इसके साथ हम जंग करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ये जंग ये जीत कर रहेगा, ये जंग ये जीत कर रहेगा, हम कभी जीत नहीं सकते। उस वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को चाबियां दी, बैतुल मुकद्दस अब मुसलमानों के पास उस वक्त आया और उस वक्त से चल रहा था। मुसलमान और ये गुंबद खजरा जो, ये कुब्बतुस सखरा जो बनाया अब्दुल मलिक बिन मरवान ने बनाया, और फिर उसके मरने के बाद उसके भाई ने बनाया वलीद बिन मरवान ने, इसको मुकम्मल किया और बहुत बड़ा है। ये पूरी मस्जिद अक्सा तकरीबन अंदर 5000 आदमी पढ़ सकते हैं और सहन में कुछ मिलाकर 50,000 आदमी नमाज उसमें पढ़ सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैतुल मुकद्दस में एक नमाज पढ़ो, बैतुल्लाह शरीफ में एक नमाज पढ़ो, 100 नमाजों का सवाब, मस्जिद नबवी को पढ़ो 50 नमाजों का सवाब, और बैतुल मुकद्दस में पढ़ो यानी मस्जिद अक्सा में पढ़ो 25,000 नमाजों का सवाब। उधर 1 लाख, सॉरी बैतुल्लाह शरीफ में पढ़ो 1 लाख नमाज का सवाब और मस्जिद नबी में पढ़ो 50,000 नमाजों का सवाब, और मस्जिद अक्सा में पढ़ो 25,000 नमाजों का सवाब मिलता है। और 3 मस्जिद ऐसी है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सफर कर सकते हो और किसी जगह इजाजत नहीं दी, सफर कर सकते हो, बैतुल्लाह, मस्जिद नबी और मस्जिद अक्सा। ये 3 मस्जिदें हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सफर कर सकते हो, यानी मालूम हुआ कि ये देखने के लायक जगह है। और वहां मुसलमानों का कब्रिस्तान है, मुस्लिम कब्रिस्तान, ये है मुस्लिम कब्रिस्तान। जन्नतुल बकी के बाद सबसे ज्यादा दफन होना मुसलमान अगर पसंद करते हैं तो वहां पसंद करते हैं। कई सहाबा वहां मदफून है, कई अंबिया अलैहिस्सलाम वहां मदफून है। ये वो जगह है, ये वो जगह है जहां हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुई थी। ये वो जगह है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। ये वो जगह है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग की। ये वो जगह है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जहां से आसमानों पर उठाया गया। और ये ईसाई लोग कहते हैं यहां इनको सूली दी गई, सूली हालांकि नहीं दी गई, अल्लाह हजरत ईसा उनको आसमानों पर उठाया गया, इसी जगह पर है। यह यहूदी लोगों का अकीदा है, ईसाइयों का भी अकीदा है, ये मुतबर्रक जगह है, और मुसलमानों का भी अकीदा है, मुतबर्रक जगह है, मुकद्दस जगह है, पुरअज़मत जगह है। और यहूदी भी कहते हैं ये पुरअज़मत जगह है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा को जो कायम किया था उसको ये हैकल सुलेमानी कहते हैं।
हैकल सुलेमानी को मिटा दिया गया है। उसके बाद दूसरे लोगों ने ये मस्जिद बनाई। अब यहूदी चाहते हैं कि इस मस्जिद को गिराकर, मस्जिद अक्सा को गिराकर, फिर हैकल सुलेमानी जो हजरत सुलेमान ने बनाई थी वो हम बनाए। एक दीवार बाकी है, हजरत सुलेमान ने जो बनाई थी वो एक दीवार बाकी है। उस दीवार के करीब वो अपना सर रखते हैं और रोते हैं और अपने जो मसीह दज्जाल है उसको बुलाते हैं, तू आ जा। क्योंकि किताबों में लिखा है कि दज्जाल जब आएगा तो पूरी दुनिया पर वो हुकूमत करेगा, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको तबाह करेंगे, और जहां तबाह करेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को, वो जगह भी वही है। और महशर जहां कायम होगा, यानी हिसाब किताब का जो मैदान होगा, वो जगह भी वही है। तो इतनी मुतबर्रक ये जगह है, इतनी मुतबर्रक जगह है। अलगर्ज 500 साल के बाद, हजरत उमर के 500 साल के बाद फिर ईसाइयों ने हमला किया मुसलमानों पर, क्योंकि उस वक्त दो मुसलमान हुकूमतें लड़ रही थी, फातिमी हुकूमत और सल्जूकी हुकूमत। इसका फायदा उठाते हुए ईसाइयों ने हमला किया और फिर वो कब्जे में ले लिया बैतुल मुकद्दस को और मस्जिद अक्सा को। वहां मुसलमानों को ताराज किया, तबाह किया, बर्बाद किया, मुसलमानों को बर्बाद किया। कहते हैं 70,000 मुसलमानों को इन्होंने शहीद कर दिया। और पूरी बैतुल मस्जिद अक्सा में इतना खून था कि आदमी अगर जाता था तो वो खून में होकर जाता था, उसका पांव खून से भर जाता था। इतने कत्ल गारत किए, मुसलमानों को ताराज किया, फिर वहां से भगाए। 88 साल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, लोग पूछते थे आप रात को गमगीन रहते हैं, आपका चेहरा मुरझाया रहता है, आपका चेहरा पीला पड़ गया है, क्या बात है? कहते थे बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा ईसाइयों के कब्जे में हो और मैं आराम से सोऊं और मैं खुशियां मनाऊं, कैसे हो सकता है? 17 हमले किए उस अल्लाह के वली ने, 17 हमले किए, और 17 हमले के साथ साथ वो एक मिंबर इसने बनाया हुआ था, मिंबर बनाया था लकड़े का। वो लकड़े का मिंबर साथ में लेकर घूमते थे और कहते थे जब बैतुल मुकद्दस फतेह हो जाएगा तो ये मिंबर वहां में रखूंगा। चुनांचे 17 हमलों के बाद इस बैतुल मुकद्दस को इन्होंने फतेह किया, बैतुल मुकद्दस को फतेह किया। फतेह करने के बाद ये मिंबर रखा। ये मिंबर 500 साल रहा, 700 साल। 1883 में किसी यहूदी ने आग लगा दी थी, जिसकी वजह से पूरा मिंबर और मस्जिद 3 दिन तक मस्जिद में आग लगी रही। आग को बुझाया, मिंबर खत्म हो गया था। वरना अगर ये यहूदी न जलाते तो आज भी वो मिंबर सलाहुद्दीन अय्यूबी का वहां मौजूद होता। अलगर्ज फिर जमाना गुजरता रहा, मुसलमानों के पास ये रहा। 1800 यानी 700 साल तक रहा, पहले 500 साल, फिर ये 700 साल, कुल 1200 साल। इसके बाद 1890 से ये यहूदियों ने रेशा दवानी शुरू की, साजिशें शुरू की। साजिशें करते 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 ये पहुंचे 1914 में इन्होंने साथ गांठ की बरतानिया से, इंग्लैंड से। इंग्लैंड वालों ने वहां उनको बसाना शुरू किया और ये बसते बसते बसते, क्योंकि रुपए बहुत सारे दिए, ये तुर्की बादशाह हमीदुद्दीन सानी के पास गए थे और कहा कि इतने रुपए आपको दे देते हैं, आपकी पूरी हुकूमत माला माल हो जाएगी, आपका पूरा कर्जा उतर जाएगा। इसने एक मिट्टी उठाई और कहा कि ये मिट्टी में ये जो मेरी मुट्ठी में मिट्टी है, जितनी तुम मालो दौलत देते हो उससे ज्यादा कीमती और अहमियत इसकी मेरे नजदीक है और मुझे महबूब तरीन मिट्टी है। एक बारिश भी तुम्हें जगह नहीं मिलेगी जब तक नहीं जिंदा हो। फिर उन्होंने इसका तख्ता उठा, फिर मुस्तफा कमाल अतातुर्क को लगाया, इसने इसकी हुकूमत को खत्म किया। उसके बाद बरतानिया ने, इसीलिए कहते हैं मुसलमानों ने गद्दारी की, ये फलस्तीन हमारे हाथ से गया। इस दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई करके चिराग से। ऐसा ही हुआ। 2 मिनट और मेरी आपकी ले लो। इसके बाद क्या हुआ? 1948 आया। ये लोग बसना शुरू हो गए थे, फलस्तीन में बसना शुरू हो गए थे। मुसलमानों से कभी कभी कीमती जगह लेते थे और खरीद कर कीमती जगह बहुत रुपए में लेते थे और अपना मैदान वसी करते थे। कभी लूट लेते थे, मार देते थे, काट देते थे और अपना ये मुल्क बसाते गए यहां तक कि 1948 में इन्होंने अपने मुल्क का ऐलान किया कि फलस्तीन हमारा इसराइल है। यहां तक कि 1968 में जंग हुई अरबों की,
1948 में भी हुई, उसमें इन्होंने 78% मुल्क के ऊपर और जमीन के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। मुसलमानों के पास से 22% रह गए। कब्जा किया 78% पर लड़कर जंग करके अरब पसपा हो गए। 1968 में या 73 में फिर जंग हुई, 4 मुल्कों ने जंग की, वो भी पसपा हो गए, हार गए। उसके बाद मुसलमानों की बहुत सारी जगह हड़प करना शुरू की और आज मुसलमानों के पास उतनी जगह ज्यादा जगह नहीं है। कहते हैं कि मुसलमानों के पास ये सिर्फ गजा का इलाका है। गजा छोटी भी जगह नहीं है, 5 बड़े बड़े जिले हैं, 5 बड़े बड़े, गजा एक जिला है, राफा एक जिला है, खान यूनुस एक जिला है, कुछ 5 बड़े बड़े जिले हैं। इन 5 बड़े बड़े जिलों में 30 लाख मुसलमान रहते हैं और यही 30 लाख मुसलमान है जो फलस्तीन को, बैतुल मुकद्दस को आजाद कराने के लिए जंग करते आए हैं और आज भी जंग कर रहे हैं। और हो सकता है ये आखिरी जंग हो, ये ताबूत की आखिरी कील साबित हो और इंशाअल्लाह बैतुल मुकद्दस फतेह हो। दुआ करें। इफ्तारी का वक्त है। इन हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, मुसलमान बच्चों के लिए, मुसलमान औरतों के लिए ये जुल्म सितम बहुत सारा हो रहा है। मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ऊपर से बम बरसाया जा रहा है, टुकड़े किए जा रहे हैं। क्या ये रिकॉर्ड ऐसा कह रहे हैं, सरकारी रिकॉर्ड है, 30,000 से ज्यादा मुसलमान शहीद हो गए हैं। ये सरकारी रिकॉर्ड है और सरकारी रिकॉर्ड कम होता है उससे 4-5 गुना ज्यादा होगा, 4-5 गुना ज्यादा हो गए। लाखों मुसलमान शहीद हो चुके हैं, लाखों मुसलमान दब चुके हैं। वह औकात अच्छे हैं, रमजान का महीना है, इफ्तारी का वक्त है, इनके लिए खूब दुआ कीजिए, रोजाना दुआ कीजिए, सदकात भी निकालें। अल्लाह ताला कई सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आइंदा कल से इंशाअल्लाह हजरत दाऊद का किस्सा सुनाया जाएगा।